Hello viewers, welcome back to our Django tutorial series day 11. Until now, you might have observed that our Django applications have been sending web pages to the browser. But websites aren't just about displaying the information. They also need to receive information from the users. Imagine that the user wants to either log in, or he wants to search for a product, or he wants to fill out a contact form, or he wants to register for an account. Now the point is, how does that information travel from the browser to the Django? That's exactly what we will see and learn in today's session. स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को और टेक गुरु के जितने भी वीडियोस हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो if you are new to the channel. Please make these videos viral for the benefit of one and all. So without further ado, let's start with our today's session. We will start this day 11 session by discussing some important and related HTML concepts which we already know, but their understanding is critical to know actually as to how the data travels from the browser to the Django server, right? तो हमारा पहला टॉपिक है HTML form. What is an HTML form? HTML form is simply a container which is used to collect user input and send it to the Django server. And what are the examples of HTML forms? It can be a login form, it can be a registration form, it can be a contact form, or even it can be a search box. The question now is, why do we need forms? क्योंकि forms के बिना users can only view web pages. That's it. So the benefit of using the forms is it allows the users to interact with the website by sending information to the server. So what is the simple rule? Using pages, we can only display information, but by using forms, we can collect information. As simple as that. अब forms कैसे यूज करते हैं उसका सिंटेक्स देख लो. फॉर्म क्या है? HTML टैग है, ठीक है. तो इसका ये पूरा सिंटेक्स है. ये है ओपनिंग टैग और ये है क्लोजिंग टैग और इसके अंदर ये इसके कंटेंट्स हैं. So everything inside this form tag becomes a part of the data which is sent to the server. I hope this is clear. अब form tag के कुछ attributes देख लो. पहला है action attribute. ठीक है, ये देखो, ये इसका syntax है. This is how it is used. Action equal to कोड्स में /welcome/. ठीक है, तो action attribute का पर्पस क्या होता है? It tells the browser where to send the form data after the user clicks on the submit button. Simple. So we can think of this attribute as the destination address of the form. अब action attribute की working detail में देखते हैं. ये जो form statement है, it tells the browser to send the form data to the URL path /welcome/. Django then matches this URL path against the URL patterns which we have defined in the urls.py file. If the match is found, the corresponding view function will be executed. The submitted form data is then made available to this view function either through request.getObject or request.postObject depending upon form's method attribute so that it can be processed. As simple as that. Form का अगला attribute है method attribute. Method attribute की दो values हम discuss करेंगे. Method equal to get and method equal to post. तो get and post क्या है? ये attribute की दो possible values हैं जो हम discuss करेंगे. और method attribute करता क्या है? It tells the browser how to send the data. और डेटा कैसे सेंड कर सकते हैं वो अब डिटेल में देखते हैं. अब पहला केस देखो, when the method attribute is set to the get value. पूरी स्टेटमेंट देखो, form method equal to get. form क्या है? आपका HTML टैग है. मेथड क्या है? फॉर्म का एट्रीब्यूट है. और गेट क्या है? एट्रीब्यूट की वैल्यू है, राइट. अब जब मेथड एट्रीब्यूट की वैल्यू गेट सेट करते हैं तो ब्राउजर विल सेंड द फॉर्म डेटा टू द सर्वर बाय अपेंडिंग द फॉर्म डेटा टू द यूआरएल एज ए क्वेरी स्ट्रिंग. तो जो भी फॉर्म डेटा होगा दैट विल बी अपेंडेड इन द यूआरएल एज ए क्वेरी स्ट्रिंग. वो कैसे होता है इस एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं. ये देखो, ये कोड देखो. इस फॉर्म में मैंने दो इनपुट फील्ड्स डिफाइन किए हैं. पहले वाला है टेक्सचुअल और दूसरी फील्ड है न्यूमेरिक और तीसरा है आपका सबमिट बटन. अगर यूजर नेम एंटर करता है राहुल और एज एंटर करता है 23
तो इस केस में ब्राउजर की जो एड्रेस बार है वो कौन सा यूआरएल दिखाएगा, वो ये वाला यूआरएल दिखाएगा। देखो ये तो सही, ये तो एज यूजुअल है, ठीक है। अब ये देखो, ये है क्वेरी पैरामीटर, क्वेश्चन मार्क से आपका क्वेरी पैरामीटर आइडेंटिफाई होता है, स्टार्ट होता है। अब ये देखो सारा फॉर्म डेटा इसमें अपेंड हो रहा है, इस यूआरएल में अपेंड हो रहा है। नेम इक्वल टू राहुल, ये एम्परसेंट से जुड़ेगा, और एज इक्वल टू 23, ठीक है। तो सारा फॉर्म डेटा यूआरएल में अपेंड हो गया। आई होप दिस इज क्लियर। अब दूसरा केस देखो, व्हेन द मेथड एट्रीब्यूट इज सेट टू द पोस्ट वैल्यू। इसका कोड देखो, फॉर्म मेथड इक्वल टू पोस्ट। ये स्टेटमेंट क्या करता है, व्हेन द मेथड एट्रीब्यूट इज सेट टू पोस्ट, browser will send the form data to the server in the body of the HTTP request and not in the URL, as the case was when the method attribute was set to get। एक एग्जांपल से इसको बिल्कुल क्लियर करते हैं। ये कोड देखो यार, इसमें भी दो इनपुट फील्ड्स हैं, एक टेक्स्ट है और एक नंबर है, और ये सबमिट बटन है। लेकिन मेथड यहाँ पे देखो क्या है, मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट, द मेथड एट्रीब्यूट हैज बीन सेट टू पोस्ट वैल्यू, ठीक है। यहां पे भी वही चीज है, नेम राहुल एंटर हुआ है और एज आपकी 23 सेट हुई है। अब ब्राउजर क्या करेगा, इट वोंट अपेंड दिस फॉर्म डेटा इन द यूआरएल एज ए क्वेरी स्ट्रिंग, रादर इट विल सेंड एन एचटीटीपी रिक्वेस्ट विच इज सिमिलर टू दिस थिंग, ठीक है। पोस्ट ये आपका पाथ हो गया, ये प्रोटोकॉल हो गया, ये इसका वर्जन हो गया, ठीक है। ये तो होस्ट हो गया जहां पे आपका जेंगो डेवलपमेंट सर्वर रन कर रहा है, और ये रहा आपका फॉर्म डेटा, नेम इज इक्वल टू राहुल एंड एज इक्वल टू 23, राइट। सो दिस इज हाउ द फॉर्म डेटा विल बी सेंड थ्रू द HTTP रिक्वेस्ट, नॉट थ्रू द URL। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। तो ये ध्यान रखना, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है URL आपका यही रहेगा, ठीक है। URL में कोई चेंज नहीं होगा। दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्म डेटा इज नॉट अपेंडेड टू द URL, instead it is sent in the HTTP request body। I hope it is clear। अब इसकी क्विक डेफिनेशन देख लो get value की। When the method attribute of the form tag is set to get, what happens? The browser will append the form data to the URL as a query string before sending the request to the server। और post के केस में क्या होगा, the browser will send the form data to the server in the body of the HTTP request, keeping the URL unchanged, untouched, right? So I hope this concept is very much clear। अब ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत वैल्यूएबल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। ट्रस्ट में किसी भी क्लास में ये चीज डिस्कस नहीं होती, लोग सालों से ये काम करते रहते हैं अननोइंगली, लेकिन एक्चुअली हो कैसे रहा है उसकी समझ नहीं होती पूरी तरह, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जब ब्राउजर की एड्रेस बार पे आप ये URL टाइप करते हो, ठीक है, देखने में तो बहुत ऑब्वियस है, पर इसके अंदर काफी सारी इंफॉर्मेशन हिडन है, और प्रॉपर वर्किंग के लिए इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब ये देखो पहला पार्ट HTTP, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और होता क्या है ये, इट इज ए सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइंस हाउ द ब्राउजर एंड द वेब सर्वर कम्युनिकेट विद ईच अदर। कहने का मतलब है ये जो कम्युनिकेशन होता है ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच में, ये HTTP प्रोटोकॉल की वजह से पॉसिबल होता है, राइट। और ये देखो, ये IP एड्रेस क्या है, ये आइडेंटिफाई करता है आपका लोकल होस्ट, राइट। और ये क्या है, ये है पोर्ट नंबर। तो व्हाट इट मींस इज, आपका जो जेंगो डेवलपमेंट सर्वर है, इट इज रनिंग ऑन दिस IP एड्रेस, दैट इज द लोकल होस्ट, एंड लिसनिंग ऑन इट्स पोर्ट नंबर 8000, ठीक है। और ये आखिरी पार्ट क्या है आपका, इसको बोलते हैं URL पाथ। चारों चीजें हमने देख ली, प्रोटोकॉल, IP एड्रेस, पोर्ट नंबर और ये URL पाथ, ठीक है। तो जब यूजर ब्राउजर के एड्रेस बार में ये पूरा URL टाइप करता है तो व्हाट हैपेंस, वो देखते हैं। अब ये देखो, दिस HTTP रिक्वेस्ट इट विल आस्क फॉर द रिसोर्स आइडेंटिफाइड बाय द URL पाथ /get/। I again repeat, this HTTP request will ask for the resource identified by the URL path /get/. Now what will happen? Django on its part, it will check its URL patterns in the defined routes,
क्योंकि राउट्स हम कहाँ डिफाइन करते हैं, urls.py फाइल में, ठीक है। उनमें से एक राउट पाथ होगा दिस वन, ठीक है। तो ये जो, और इसको क्या बोलते हैं, यूआरएल पैटर्न, ठीक है, जैसे मैंने एरो से मार्क भी किया हुआ है, ठीक है। तो राउट्स में क्या होता है, यूआरएल पैटर्न होता है, और ब्राउजर क्या भेजता है, यूआरएल पाथ। ये रहा यूआरएल पाथ और ये यूआरएल पैटर्न। अब ये जो यूआरएल पैटर्न है, ठीक है, इट एक्ट्स एज ए मैपिंग बिटवीन द रिक्वेस्टेड यूआरएल पाथ एंड द व्यू फंक्शन दैट शुड हैंडल दिस रिक्वेस्ट, ठीक है। तो अगर मैचिंग यूआरएल पैटर्न मिल जाता है, ये रहा ना, ये मैचिंग पैटर्न मिल गया, Django calls the get form view function. This is the name of the function, get form, right? तो जैसी पैटर्न मैच कर जाता है तो corresponding get underscore form view function आपका एग्जीक्यूट हो जाता है, as simple as that. और अगर आपको याद हो, व्यू फंक्शन में लास्ट स्टेटमेंट क्या होती है, रिटर्न रेंडर, ठीक है, ये फंक्शन होता है। इस फंक्शन का क्या पर्पस होता है, इट क्रिएट्स एन HTTP रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, ठीक है, ध्यान से स्पेलिंग देखना, ये एक्चुअल स्पेलिंग्स हैं, ठीक, HTTP रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, इसको दिमाग में बिठा लो, ठीक है। तो रेंडर फंक्शन क्या करता है, इट क्रिएट्स एन HTTP रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। Django अब क्या करेगा, इट विल कन्वर्ट दिस HTTP रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट इनटू एन HTTP रिस्पॉन्स मैसेज एंड इट विल सेंड इट बैक टू द ब्राउजर। वो इसलिए होता है कि पाइथन में ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ब्राउजर को ये चीज समझ नहीं आती, ठीक है। तो Django क्या करेगा, इस HTTP रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर देगा इनटू HTTP रिस्पॉन्स मैसेज विच द ब्राउजर कैन अंडरस्टैंड। तो ये डिटेल में देख लो, HTTP रिस्पॉन्स मैसेज, द HTTP रिस्पॉन्स इज द मैसेज sent by the server to the browser. Why? Because the browser does not understands Python objects. What it understands is the HTTP response message. Django में ये जो मैसेज हमने देखा था ना, कैसे रिप्रेजेंट होता है, एज HTTP रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट बिफोर इट इज सेंड ओवर द नेटवर्क, ठीक है। A typical HTTP response will look like this. ये रिस्पॉन्स मैसेज हो गया, इसमें स्टेटस कोड होगा, जैसे 20 सक्सेस या फेलियर, हेडर्स होंगे, और बॉडी। हमारा कंसर्न है बॉडी से, क्यों, क्योंकि बॉडी के अंदर होगा आपका रेंडर्ड HTML, ठीक है। ब्राउजर इसको एक्सट्रैक्ट करता है और आपको दिखाता है। तो ब्राउजर विल बेसिकली एक्सट्रैक्ट दिस रेंडर्ड HTML एंड इट विल डिस्प्ले टू द यूजर। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो यहाँ पे अब क्लियर हो जाएगा, द HTTP रिस्पॉन्स मैसेज इज नॉट द वेब पेज, ठीक है, इट इज नॉट द वेब पेज, इंस्टेड द ब्राउजर। अब ये ध्यान से देखो, द ब्राउजर विल एक्सट्रैक्ट the rendered HTML from this response message. It will parse it and render it as a visible web page on your screen. Right? I hope you are understanding the flow. Browser को मिलेगा HTTP response message. उसके अंदर क्या होगा, ये होगा बॉडी होगी, बॉडी के अंदर आपका rendered HTML होगा, the completed HTML form. ठीक है। ब्राउजर क्या करेगा, इस rendered HTML को एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है, वो यहां पे लिखा हुआ है। द ब्राउजर एक्सट्रैक्ट्स द रेंडर्ड HTML फ्रॉम द रिस्पॉन्स बॉडी, इट विल पार्स इट एंड इट विल रेंडर इट एज ए विजिबल वेब पेज ऑन योर स्क्रीन। सो दिस इज द होल प्रोसेस। ओके, द कमांड इज वेरी सिंपल, यू टाइप द URL, बट व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग नाउ, दिस प्रोसेस शुड बी क्लियर। अब ये देखो, HTTP रिस्पॉन्स मैसेज तो देख लिया। अब एक चीज और होता है, ये स्टार्टिंग में होता है HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्पेलिंग इसके देख लो, HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। जब ब्राउजर HTTP रिक्वेस्ट भेजता है Django सर्वर में, व्हाट Django डज इज इट क्रिएट्स एन HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, राइट, जिसका नाम होता है रिक्वेस्ट, यही रखते हैं ना हम रिक्वेस्ट। तो व्हाट इट विल डू इज, जो भी HTTP रिक्वेस्ट आई है उसका HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट बनाएगा, जिसका हम नाम रखते हैं रिक्वेस्ट, एंड दिस इज व्हाट इज पास्ड एज द फर्स्ट पैरामीटर टू दी व्यू फंक्शन, ठीक है। जो हमारा व्यू फंक्शन होता है उसमें काफी सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं, पर ये मैंडेटरी है कि जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है इट हैज टू बी दी फर्स्ट पैरामीटर ऑफ द व्यू फंक्शन, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और ये जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है, विच इज इन फैक्ट HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन सेंड बाय द ब्राउजर, विच इंक्लूड्स द रिक्वेस्ट मेथड, गेट हो सकता है, पोस्ट हो सकता है, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, वो हम एडवांस Django में देखेंगे इन दी सेशंस टू कम। URL होता है, हेडर्स होते हैं,
क्वेरी पैरामीटर्स होते हैं, फॉर्म डेटा होता है, कुकीज होते हैं और अपलोडेड फाइल्स इफ एनी। ठीक है, तो ये सारे कंटेंट्स होते हैं आपके रिक्वेस्ट के, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के, राइट। तो ये जरा ध्यान से ये चीजें दिमाग में बैठा लो। मैं फिर दिखा रहा हूं आपको, ये जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन सेंड बाय द ब्राउजर विच इंक्लूड्स these things: request method, URLs, headers, query parameters, form data, cookies, uploaded files if any. I hope you are getting the things. अब ये देख लो यार, ये जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है which is passed as the first parameter to the view function, क्या सिंटेक्स होता है? ये देखो, dev get form, ये आपका व्यू फंक्शन है और ये the request is the first parameter. There can be number of parameters but request has to be the first parameter. ठीक है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट क्या है? It is the HTTP request object created by Django. As simple as that. इस सेशन में सिर्फ 2 टॉपिक्स बचे हैं, उनको जल्दी से समझते हैं और मूव करते हैं प्रैक्टिकल्स पे, ताकि जितने भी कंसेप्ट्स इस सेशन में हमने डिस्कस किए हैं उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखें, ताकि सारी चीजें हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएं। स्टार्ट करते हैं पहले कंसेप्ट से। इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखो। इस स्टेटमेंट के 2 पार्ट्स हैं, ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट। अब पहले पार्ट में ये जो रिक्वेस्ट है ये ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। रिक्वेस्ट क्या है? इट इज द HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट विच इज क्रिएटेड बाय Django फॉर एवरी इनकमिंग HTTP रिक्वेस्ट। ठीक है, अब रिक्वेस्ट क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है और हमें पता है किसी भी पाइथन ऑब्जेक्ट में 2 चीजें होती हैं, एक होता है मेथड और एक होता है एट्रीब्यूट। तो ये जो गेट है ये है रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट। ठीक है, सो व्हाट इज गेट? इट इज द एट्रीब्यूट ऑफ दिस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। और ये जो गेट है ये एक ऑब्जेक्ट है ऑफ द टाइप क्वेरी डिक्ट। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि गेट जो है क्वेरी डिक्ट ऑब्जेक्ट है विच इज ए डिक्शनरी लाइक ऑब्जेक्ट। लेकिन इसकी जो फंक्शनैलिटी में और भी बहुत कुछ होता है, पर कंसेप्चुअली हम इसको कैसे विजुअलाइज करते हैं? डिक्शनरी लाइक ऑब्जेक्ट। तो आई होप यहां तक सब कुछ आपको समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं। जब आप कोई भी फॉर्म सबमिट करते हो यूजिंग दिस स्टेटमेंट, फॉर्म मेथड इक्वल टू गेट, इसमें हमने क्या किया है? फॉर्म का जो मेथड एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू हमने सेट की है गेट। तो इस केस में ब्राउजर विल अपेंड द फॉर्म डेटा टू द URL एज क्वेरी स्ट्रिंग। ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो URL क्या बनेगा? ये तो देखो IP एड्रेस आ गया, पोर्ट नंबर आ गया और ये URL पाथ आ गया। ठीक है, यहां से कुछ शुरू हो रहा है। ये क्या है? ये क्वेरी स्ट्रिंग है। ठीक है, दिस इज द क्वेरी स्ट्रिंग। पता कैसे लगता है? क्वेश्चन मार्क से शुरू होती है। ठीक है, और ये क्या है? क्वेरी पैरामीटर्स। ये पहला क्वेरी पैरामीटर है और ये दूसरा क्वेरी पैरामीटर है। और सेपरेटर क्या होता है? एम्परसेंड। ठीक है, एम्परसेंड क्या होता है? सेपरेटर होता है विच सेपरेट्स वन क्वेरी पैरामीटर फ्रॉम द अदर। ठीक है, क्योंकि यहां देखो मैंने क्या पास किया था? नेम इक्वल टू राहुल और एज इक्वल टू 23। ये फॉर्म के पैरामीटर्स थे। ये पहली इनपुट फील्ड थी, ये दूसरी इनपुट फील्ड थी, ये टेक्स्ट थी और ये न्यूमेरिक थी, अगर आपको प्रीवियस डिस्कशन से याद हो तो। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं? इन दोनों को दे आर रेफर टू एज क्वेरी पैरामीटर्स। और ये पूरी चीज क्या होती है? क्वेरी स्ट्रिंग होती है। आई होप दिस इज क्लियर। अब ये देखो Django क्या करता है? ये जो क्वेरी पैरामीटर है इसको स्टोर कहां करता है? इस क्वेरी डिक्ट ऑब्जेक्ट में। ठीक है, क्वेरी डिक्ट क्या? ये देखो, ये स्पेलिंग क्वेरी डिक्ट। ठीक है, क्वेरी डिक्ट। तो जितने भी क्वेरी पैरामीटर्स होते हैं Django उनको इस क्वेरी डिक्ट ऑब्जेक्ट में स्टोर करता है। एंड यू कैन थिंक ऑफ रिक्वेस्ट डॉट गेट एज ए डिक्शनरी लाइक ऑब्जेक्ट। कंसेप्चुअली आप इसको ऐसे विजुअलाइज कर सकते हो, रिक्वेस्ट डॉट गेट इक्वल टू ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। और जो सेकंड पार्ट था गेट मेथड, अब तो आप समझ ही गए होगा ना। ऑब्जेक्ट में 2 चीजें होती हैं, एट्रीब्यूट होता है और मेथड होता है। अब जो हमारा रिक्वेस्ट डॉट गेट है वो क्या है? क्वेरी डिक्ट ऑब्जेक्ट है, तो उसका कोई मेथड होगा, ये रहा गेट मेथड। ये गेट मेथड क्या करता है? इट सर्चेस फॉर द स्पेसिफाइड की। कौन सी की? ये वाली की जो आपने बताई है, इनसाइड द रिक्वेस्ट डॉट गेट ऑब्जेक्ट। ठीक है, किस तरह? रिक्वेस्ट डॉट गेट नेम। ठीक है, तो दिस मीन्स लुक इनसाइड दिस क्वेरी डिक्ट ऑब्जेक्ट फॉर द की जिसका नाम है नेम एंड रिटर्न इट्स वैल्यू। तो ये चीज क्लियर है। अब इसका इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। ये देखो, अगर आप ये लिखते हो रिक्वेस्ट डॉट गेट नेम, नेम क्या था? राहुल, राहुल रिटर्न हो गया। और अगर ये लिखते हो रिक्वेस्ट डॉट गेट एज, राहुल की एज मिल जाएगी विच वॉज सेट टू 23। नाउ आई होप दिस
इंटायर प्रोसेस इज वेरी मच क्लियर। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट थी रिक्वेस्ट डॉट गेट, अब आपको इसकी वर्किंग पूरी तरह क्लियर है। तो ये देखो यार, ये समरी है। रिक्वेस्ट क्या था? HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, और रिक्वेस्ट डॉट गेट क्या है? इट इज अनदर ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑफ द टाइप क्वेरी डिक्ट। तो रिक्वेस्ट डॉट गेट क्या है? इट इज ए क्वेरी डिक्ट ऑब्जेक्ट विच इज स्टोर्ड एज एन एट्रीब्यूट ऑफ द रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, एज सिंपल एज दैट। अब ये देखो इसकी पूरी पिक्चर। ये हमारा रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है विच इनफैक्ट इज HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। इसके देखो कंटेंट्स देख लो, मेथड है, पाथ है, ये देखो ये रहा, ये एट्रीब्यूट आ गया आपका क्वेरी डिक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, मेथड है, पाथ है, हेडर्स हैं, कुकीज हैं, फाइल्स हैं, लेकिन हमारे मतलब का ये गेट और पोस्ट वैल्यूज। ठीक है, अभी हमने यूज किया था गेट, पोस्ट भी उसी तरह वर्क करता है, क्योंकि पोस्ट भी क्वेरी डिक्ट ऑब्जेक्ट है, और इसकी वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें की यूज करनी पड़ेगी यूजिंग द गेट मेथड, एज सिंपल एज दैट। अब ये हमारे जो सेकंड कंसेप्ट है, लास्ट कंसेप्ट है, उसकी स्टेटमेंट देखो। अब इस स्टेटमेंट को आप देख के समझ ही गए होंगे कि पहले था गेट, अब यहां पे आ गया पोस्ट। ठीक है, बाकी सारी वर्किंग वैसे ही है। रिक्वेस्ट क्या है? HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है। पोस्ट क्या है? ये एट्रीब्यूट है। किस टाइप का एट्रीब्यूट है? ऑब्जेक्ट। किस टाइप का ऑब्जेक्ट? क्वेरी डिक्ट ऑब्जेक्ट। और गेट क्या कर रहा है? ये इसका मेथड है, क्वेरी डिक्ट ऑब्जेक्ट का मेथड है टू गेट द वैल्यू बेस्ड ऑन दिस की। तो जो वर्किंग हमने गेट के केस में डिस्कस की थी, सेम वर्किंग एप्लीकेबल है पोस्ट के ऊपर भी। तो देखो वही लिखा हुआ है, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट क्या है? ये भी क्वेरी डिक्ट ऑब्जेक्ट है। इट इज जस्ट लाइक ए पाइथन डिक्शनरी, और कंसेप्चुअली आप ऐसे इसको इमेजिन कर सकते हैं। ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है। तो इस स्टेटमेंट की वन लाइन समरी देख लो। ये क्या करता है? इट रिट्रीव्स द वैल्यू एसोसिएटेड विद द की नेम, ये वाला की, इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है उसको रिट्रीव करता है फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट क्वेरी डिक्ट ऑब्जेक्ट। जो क्या करता है? इट स्टोर्स द फॉर्म डेटा विच इज सेंड यूजिंग द पोस्ट मेथड एंड असाइंस दैट रिट्रीव्ड वैल्यू टू द पाइथन वेरिएबल नेम। ये कौन सा वेरिएबल है? ये वाला। ठीक है, आई होप द थिंग्स आर क्लियर। तो चलो अब हैंड्स ऑन करते हैं और मूव करते हैं VS कोड में। कमांड प्रॉम्प्ट मैंने खोल ली, गेट और पोस्ट को प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो देखते हैं। तो फटाफट एक जेंगो प्रोजेक्ट बनाते हैं। जेंगो प्रोजेक्ट का नाम रख रहा हूं गेट पोस्ट। आप कोई भी नाम चूज कर सकते हो। अब प्रोजेक्ट के अंदर एक ऐप बनाओ। ऐप का नाम मैं रख रहा हूं होम। ठीक है, तो स्ट्रक्चर देख लो। ये मेरा जेंगो प्रोजेक्ट हो गया, ये इनर फोल्डर हो गया, और ये ऐप हो गया। ठीक है, आप खोलो VS कोड, कैंसिल करो, यस कर दो, कैंसिल करो। ठीक है, ये मेरी ऐप है जिसका नाम है होम। अब इसमें बनाते हैं टेम्पलेट्स फोल्डर। टेम्पलेट्स फोल्डर में हम दो HTML फाइल्स बनाएंगे। पहली है गेट फॉर्म डॉट HTML। ये फाइल क्या करेगी? गेट की वर्किंग प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करेगी। और दूसरी फाइल बनाते हैं पोस्ट फॉर्म डॉट HTML। ये फाइल क्या करेगी? पोस्ट की वर्किंग प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करेगी, एज सिंपल एज दैट। अब आते हैं इसके कोडिंग पे, गेट फॉर्म की। टाइटल रखते हैं गेट फॉर्म। बॉडी में आ जाओ, H1 गेट फॉर्म एग्जाम्पल। फॉर्म डिक्लेयर करो, मेथड रखो गेट। इस फॉर्म में दो इनपुट फील्ड्स डिक्लेयर करेंगे, एक नेम और एक एज।
इसका नाम रखो, नाम हिंदी वाला, कुछ भी रख सकते हो, मैंने नाम रख लिया। एंटर, नेम। ठीक है जी। दूसरी इनपुट फील्ड पे आ जाओ, एज, क्योंकि एज न्यूमेरिक होती है इसलिए नंबर। ठीक है, हिंदी वर्ड रख रहा हूं, उम्र। एंटर एज। ठीक है जी। अब सबमिट बटन डिफाइन करो। ठीक है जी, फॉर्म हो गया। अब जेंगो टैग्स डिफाइन करते हैं। ठीक है जी, अब ये हमारा कोड हो गया कंप्लीट। इसको सेव करो, कॉपी करो और आज उस पे पोस्ट पे पेस्ट करो, फटाफट चेंजेस करो। ये हमारा पोस्ट फॉर्म है तो यहां लिखो पोस्ट, पोस्ट फॉर्म एग्जाम्पल। मेथड गेट की जगह क्या होगा, पोस्ट। अब यहां पे ना एक चीज चाहिए होती है हमें, CSRF टोकन हमें यहां डिफाइन करना होता है। जब भी फॉर्म को आप पोस्ट कर रहे हो ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, अदरवाइज फॉर्म सबमिट नहीं होगा, एरर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ इस स्टेटमेंट को भूल जाओ, बस इतना समझ लो कि ये रिक्वायर्ड स्टेटमेंट है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। ये हम नेक्स्ट सेशन में अच्छी तरह डिटेल में पढ़ेंगे। तो बाकी तो सब सेम है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, सेव करो। तो टेम्पलेट्स तो हमारे डिफाइन हो गए। अब आते हैं व्यूज पे। ये रहा। अब ये करते हैं पोस्ट के लिए। यहां बस छोटा सा चेंज है, गेट की जगह पोस्ट फॉर्म आ जाएगा, दैट्स इट। तो ये कोडिंग भी हमारी होगी कंप्लीट। अब हमारी जो ऐप है उसको रजिस्टर करो, प्रोजेक्ट फोल्डर में आओ, सेटिंग्स में आओ, होम, सेव करो। अब आ जाओ यूआरएल्स में। दो राउट्स हम डिफाइन करेंगे, एक गेट के लिए और एक पोस्ट के लिए। पहले करते हैं गेट के लिए। फंक्शन है हमारा कॉरस्पॉन्डिंग गेट फॉर्म। अब करते हैं पोस्ट का राउट डिफाइन। कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन है पोस्ट फॉर्म।
ठीक है जी। तो दो राउट्स हमने डिफाइन कर लिए, एक गेट के लिए एक पोस्ट के लिए। काम हमारा अब कंप्लीट है। इसको सेव करो, टर्मिनल ओपन करो और सर्वर चलाओ। रन सर्वर। अब देखो यार, हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। या तो मैं इस पे क्लिक करूं, इस यूआरएल पे क्लिक करूं, या ये पूरा यूआरएल अपने ब्राउजर के एड्रेस बार पे टाइप करूं। ठीक है, लेकिन जब मैं ब्राउजर के एड्रेस बार में ये टाइप करूंगा तो ये जो यूआरएल पाथ है स्लैश, ये ब्राउजर इग्नोर कर देगा। तो विजुअली जब आप एड्रेस बार को देखेंगे तो ये स्लैश आपको दिखेगा नहीं, भले आपने ये टाइप किया, लेकिन जब ब्राउजर जेंगो को रिक्वेस्ट भेजेगा तो स्लैश जाएगा, कंसिडर होगा। अब यूआरएल्स कितने टाइप के होते हैं पहले वो देखते हैं। एक तो ये हो गया, और भी बहुत सारे हैं, और भी हैं, वो देखते हैं, सारे देखते हैं। पहला HTTP, एक तो ये हो गया, ठीक है, स्लैश। दूसरा देख लो, ठीक है जी। तीसरा, ठीक है। तो इस तरह काफी सारे यूआरएल्स हो सकते हैं। अब इनका इंटरप्रिटेशन देखते हैं। ठीक है, ये जो पहला यूआरएल है, इसका मतलब क्या हुआ? ब्राउजर इज रिक्वेस्टिंग द रिसोर्स हुज पाथ इज स्लैश फ्रॉम द जेंगो डेवलपमेंट सर्वर। ठीक है, इसी तरह सेकंड यूआरएल पाथ का क्या मतलब होता है? ब्राउजर इज रिक्वेस्टिंग द रिसोर्स हुज यूआरएल पाथ इज स्लैश अबाउट। सिमिलरली तीसरे यूआरएल का क्या इंटरप्रिटेशन है? ब्राउजर इज रिक्वेस्टिंग फॉर द रिसोर्स हुज यूआरएल पाथ इज स्लैश प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये चीज अब क्लियर है। ओके, अब जब ये रिक्वेस्ट जेंगो को जाती है तो जेंगो क्या करता है? जेंगो विल लुक फॉर द मैचिंग यूआरएल पैटर्न। और आपको पता है स्लैश है, इसका इक्विवेलेंट यूआरएल पैटर्न क्या होता है? एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, ये डबल कोटेशन मार्क से है, ये सिंगल कोटेशन मार्क से है। तो होगा क्या? जेंगो विल लुक फॉर द मैचिंग यूआरएल पैटर्न। अगर तो मिल गया, वो रिक्वेस्ट प्रोसेस हो जाएगी, नहीं तो एरर थ्रो हो जाएगा। कौन सा? 404 रिक्वेस्ट नॉट फाउंड। ठीक है, तो करके देखते हैं। अब करो इस पे क्लिक। ठीक है, तो राइटली ये एरर आ गया, पेज नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि यहां पे जो स्लैश था लास्ट में, रूट यूआरएल था, इसका यूआरएल पैटर्न urls.py फाइल के राउट्स में डिफाइंड नहीं था, इसीलिए ये एरर आया 404। अब ये 404 को क्या बोलते हैं? ये होता है HTTP स्टेटस कोड बोलते हैं इसको, मतलब नॉट फाउंड, रिसोर्स नॉट फाउंड। ठीक है जी, ये क्लियर है। और एक चीज देखो, ब्राउजर आपको पूरा एरर एनालिसिस देता है कि स्टेटस कोड कौन सा है, एरर कोड कौन सा है, और एरर क्यों आया वो भी बता रहा है। देखो यहां पे जेंगो ट्राइड दीज यूआरएल पैटर्न्स। ठीक है, आपको ध्यान हो तो यूआरएल्स में हमने क्या, पहला राउट कौन सा था? एडमिन का, दूसरा था गेट का, और तीसरा था पोस्ट का, चौथा कोई नहीं था। ठीक है, द एम्प्टी पाथ डिड नॉट मैच एनी ऑफ दीज। एम्प्टी पाथ मतलब स्लैश रूट यूआरएल। ठीक है, तो इसी वजह से ये 404 एरर आया। और एक चीज और देखो, ये एरर आप क्यों देख रहे हो? क्योंकि आपके सेटिंग्स फाइल में debug इक्वल टू ट्रू है, प्रोडक्शन में इसको क्या करते हैं? फॉल्स है। ठीक है, चेंजिंग दैट टू फॉल्स, जेंगो विल डिस्प्ले ए स्टैंडर्ड 404 पेज। ऐसे आता है ना, एक 4 पे ये ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पे लिखा होगा 404 पेज नॉट फाउंड। ठीक है, पेज नॉट फाउंड, ये एरर मैसेज आ जाएगा। लेकिन ये जो डिटेल एनालिसिस है वो इसी वजह से आ रही है क्योंकि debug की वैल्यू ट्रू सेट है। आई होप दिस प्रोसेस इज नाउ क्लियर। ठीक है, तो ये पार्ट ओवर हुआ। हमने कौन से राउट्स डिफाइन किए थे? गेट और पोस्ट। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यही मैसेज लॉग्स में भी आपको मिलेगा। देखो कैसे, ये देखो मिल गया। तो इसका क्या मतलब हुआ? ब्राउजर इज रिक्वेस्टिंग फॉर ए रिसोर्स हुज यूआरएल पाथ इज स्लैश। ठीक है,
प्रोटोकॉल कौन सा है? HTTP, इसका वर्जन क्या है? 1.1। स्टेटस कोड कौन सा मिला आपको? 404। और 2453 क्या है? इट इज द साइज इन बाइट्स ऑफ द रिस्पॉन्स बॉडी। ठीक है, अभी जो आप देख रहे थे ना ब्राउजर पे, वो रिस्पॉन्स बॉडी बोलते हैं, उसका क्या साइज है? 2453 बाइट्स। देखो ये रहा, ये पूरा साइज ये है 2453। ठीक है जी, ये मतलब है इसका। तो आई होप दिस इज क्लियर। अब क्या करते हैं, ये पाथ देते हैं गेट का और एंटर प्रेस करो। मिल गया आपको? ठीक है, अब लॉग में भी देखो, लॉग में क्या आया देखो। ठीक है, स्लैश गेट HTTP अब 200 मतलब आपका रिक्वेस्ट प्रोसेस हो गया। ठीक है, इट्स ओके, कोई एरर नहीं है। 454 क्या है? वो साइज इन बाइट्स ऑफ द HTTP रिस्पॉन्स बॉडी। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर। चलो अब नेम दे दो, से राकेश, उसकी एज दे दो 27 और सबमिट कर दो। अब ये देख रहे हो, क्योंकि ये गेट मेथड था तो क्या हुआ देखो, क्वेरी पैरामीटर बना आपका, ये रहा क्वेरी पैरामीटर, देख रहे हो? ठीक है, नाम इक्वल टू राकेश एंड उम्र इक्वल टू 27। ठीक है, और ये आपका मैसेज करेक्टली डिस्प्ले हो गया, वेलकम राकेश, योर एज इज 27। ठीक है, तो गेट फॉर्म आपका क्लियर है। ओके, अब आते हैं पोस्ट पे। क्लियर करो, यहां पे लिखो पोस्ट। अब ये देखो, यूआरएल में कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब आप पोस्ट करते हो तो जो डेटा जाता है वो इट इज द पार्ट ऑफ द HTTP रिक्वेस्ट, इट डज नॉट गेट्स एम्बेड इन द URL एज वाज द केस व्हेन यू आर यूजिंग गेट। ठीक है, अब नाम डाल दो, राकेश वर्मा, एज है 35। अब यार यहाँ पे कुछ डिस्प्ले नहीं हुआ, इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वो चेक करते हैं। ये गेट फॉर्म है, ये पोस्ट फॉर्म है। अरे यार, गेट नहीं आना है, या पोस्ट आना चाहिए था, शिट। अब ठीक है यार, अब आ जाओ इस पे, इसको रिफ्रेश करो। ठीक है, आ गया ना हरीश? एक बार दोबारा करते हैं। ठीक है, कोई और नाम एंटर करो, राकेश वर्मा। ठीक है, एज एंटर करो इसकी, से 33। अब सबमिट करो। ठीक है, आ गया राइटली, राकेश वर्मा, एज इज 33। ठीक है, तो आई होप दिस एंटायर प्रोसेस इज नाउ क्लियर। ठीक है जी, तो काफी कुछ हमने इस सेशन में कवर कर लिया। ठीक है, तो क्लोज करते हैं ये सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।